বাংলাতে উত্তর দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন কালকে 8:25 এবিপি আনন্দ আমার বাড়ির নিচে এসেছিল, সেই স্টেটমেন্টটাও আপনারা দেখেছেন এবং আমি আপনার কাছে এভিডেন্সগুলো দিচ্ছি। ঠিক 3:15 কালকে 3:15 আমার ছোট ভাই, তার নাম হচ্ছে ওয়াসিম রাজ, সে আমাকে ফোন করে এবং ফোন করে কথাও বলতে পারছে না, কাঁদছে এবং শ্বাস আটকাচ্ছে, বলছে মেরা জান খতরে মে হ্যায় ভैया, हमको बचा लीजिए। আমাকে মেরাজ এবং ডাব্বু এরা 20-25 জন আমার উপর চড়াও করে আমাকে বেধড়ক মারছে। আমি কলুটোলা মার্কাজ মসজিদ সেখানে আছি, সেখান থেকে আপনাকে ফোন করছি। আমি কোট অ্যান্ড কোট আপনাদের সামনে পান্নু ফাকিরা, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কুক অফ বিরিয়ানি, কলকাতাতে বিখ্যাত বিরিয়ানি যে তৈরি করেন তার নাম হচ্ছে পান্নু ফাকিরা। তিনি এই রমজান মাসে ওই হারানবাড়ি লাইনে ওই সামনে একটা হেলিমের দোকান, রমজান মাসে স্পেশাল যে হেলিমটা হয় সেখানে ওনার দোকান, উনি সবাইকে চিনেন, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কুক অফ বিরিয়ানি। আমাকে বলছে যে পান্নু চাচা, अच्छे भाई और আসিফ চিকনা আসিফ, এই 2-4 জনকে আমি জানি, তারা আমাকে বাঁচিয়েছে এবং ওখানকার দোকানদাররা, হকার্সরা আমাকে সেফগার্ড করে মসজিদে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কোন মসজিদ? কলুটোলা মার্কাজ মসজিদ, সেখানে আমার ভাইকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ওরা মসজিদে আর ঢুকতে পারিনি। ওখান থেকে আমাকে ফোন করেছে, ওরা বাইরে এখনো আছে, আমি মসজিদে আছি, বহুত মার মেরেছে আমাকে মেরে ফেলবে, মেরাজ এবং ডাব্বু। সঙ্গে সঙ্গে ওই অবস্থায় আমি অন ক্যামেরা কোনো ঢাক ঢুল না পিটিয়ে বলছি, যদি আমার ভাই কি কোনো সাধারণ মানুষও যদি আমাকে এইভাবে ফোন করে বলে আমার প্রাণহানি হচ্ছে, আমাকে বাঁচান, আমি সেখানে যাব। সেটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আমার প্রাণ চলে যাক, কিন্তু একজনের প্রাণটা বাঁচানোর চেষ্টা করবই করবো। আমি একটা জায়গাতে আগুন লাগলে যায় না লোক, যায় কি যায়? একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলে আমরা কাউন্সিলর, জনপ্রতিনিধি আমরা যাব না? আর সেখানে আমার নিজের ভাই আমার সাথে থাকে, 9 বছর যখন বয়স আমার বাবা মা মারা যায়, তখন 9 বছরের ওই ইয়েতিম বাচ্চাকে আমি পরবরিশ করেছি। ও আমার ভাইও আছে, ছেলেও আছে। এই সেন্টিমেন্টটা বুঝবেন আপনি। একটা ভাইয়ের সামনে রোজার সময় বলছে যে আমার প্রাণহানি আছে, আমি মসজিদে পানা নিয়েছি, শেল্টার নিয়েছি, আমি কলুটোলা মসজিদে আছি। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওসি বউবাজার দেবজিৎ ভট্টাচার্যকে ফোন করেছি, সঙ্গে সঙ্গে, এবং ফোন করে ওনাকে বললাম যে আমার ভাই আমাকে কলুটোলা মার্কাজ মসজিদ, বলে কোন মার্কাজ মসজিদ? আমরা খুব ফেমাস কলুটোলাতে মার্কাজ মসজিদ, নাকুদা মসজিদ যেমন ফেমাস এবং কলুটোলাতে মার্কাজ মসজিদ ফেমাস, সেখানে আমার ভাই আছে। ওকে মিরাজরা আমার ভাইয়ের উপর চড়াও করেছে, মেরেছে এবং ওর প্রাণটা বাঁচিয়ে মসজিদে আছে। প্লিজ আপনি সেভ দ্য লাইফ, ওর প্রাণটা বাঁচান। তখন বলেছে ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। ইন দ্য মিন টাইম আমি অন ক্যামেরা নাম বলছি না, আমি আমার পার্টির নেতৃত্বকে ফোন করি। আমার পার্টির নেতৃত্বকে ফোন করে আমি বললাম যে আমার ভাই আমাকে ফোন করেছে মার্কাজ মসজিদে, আমার ভাই প্রাণটা বাঁচিয়ে ওখানে আছে। বউবাজার থানাকে আমি আমার নেতৃত্বকে বললাম যে বউবাজার থানাকে একটু বলে দিন, কারণ আমি বলেছি, আমার বলাতে আমার নেতৃত্ব যদি থানাতে বলেন আরো ভালো হয়। এই ক্ষেত্রে আমি নেতৃত্বকে বলি এবং নেতৃত্বকে বলার পর আমি যখন ওখানে যাই, গিয়ে দেখি ওসি বউবাজার সমস্ত পুলিশ ফোর্সকে নিয়ে আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল হারানবাড়ি লাইনে মুখে। আপনি দেখবেন, আমি এক একটা করে উদাহরণ দিচ্ছি। দেখবেন তাজ, যার কথা আপনারা বলছেন নির্দলে জিতেছে যায়, তাজ কি বলেছে? তাজের ফেসবুকে প্রথম বক্তব্যটা দেখুন, কি বলেছে ও? যে রাজের সাথে হুজ্জত হয়েছে, ওর মাকে নাকি ডায়ালিসিস করতে যাচ্ছিল, হুজ্জত হয়েছে, ও কলাবাগান এসছে, কলাবাগান থেকে ছেলেদেরকে নিয়ে গেছে। আমার প্রথম প্রশ্ন, যদি রাজ কলাবাগান আসতো, ছেলেদেরকে নিয়ে যেত, তাহলে আমরা যখন 10-12 জন ওখানে গেছি তখন তো ওসির সঙ্গে ছিল
এবং মসজিদ থেকে ওকে উদ্ধার করে পান্নু ফাকিরা দোকানে ওকে বসানো হয়েছে এবং বসিয়ে ওকে জল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ও বলেছে না, জল না, রোজাতে আছে, আমি জল খাবো না, রোজাতে আছে। পান্নু ফাকিরা তার ছেলেরা ওকে বসিয়েছে, ওখানে পাখা চালু করেছে এবং ওসি সাহেব ওখানে ছিলেন। তারপরে বলছেন যে তোমার ভাইও ফোন করেছে, জেসিম হয়তো আসছে। যখন আমি গেছি পুরো অফিসারের সাথে ঘিরা রাজ, তাহলে রাজ কি করে কলাবাগানে আসলো আর ছেলেদেরকে নিয়ে গেল? তার উত্তর তো ওসি দেবে, তার উত্তর পণ্য ফকিরা দেবে যে মসজিদ থেকে নিয়ে এসে নিজে দোকানে বসিয়েছে। তারপরে ওসি সাহেব ওখানে রাজের সঙ্গে ছিলেন, তবে রাজ এখানে এসছে, কলাবাগানের ছেলেদেরকে নিয়ে গেছে। প্রথম প্রশ্নটা এই জায়গাটা, প্রথম প্রশ্নটা, জিনিসটাকে বুঝতে হবে ভালো করে। এবার আমি সোজাসুজি আপনাদের একটা প্রশ্ন হতে পারে যে রাজের সাথে কেন হলো, মেরাজ বা ডাব্বু কেন ওর উপর আক্রমণ হলো? আপনারা তো সোজাসুজি বলতে পারেন যে ওই মিরাজ মাকে নিয়ে ডায়ালিসিস করতে যাচ্ছিল গাড়িতে, ওখানে রাজ স্কুটি নিয়ে যাচ্ছিল, দুজনের মধ্যে তর্ক হয়েছে, তর্ক হওয়ার পর রাজের সাথে ঝামেলা হয়েছে। খুব ভালো লাগছে শুনতে যে এটা তো কোনো মানে বাস্তব নয়। ডায়ালিসিস করতে যাচ্ছে রাজ, ওখানে হঠাৎ করে স্কুটি নিয়ে আসলো, এখানে হয়ে গেল, ঝগড়া হয়ে গেল, বিষয়টা তা নয়। আমি বলছি ওরা বলবে না, আমি সত্যি কথা বলছি। ওই জন্য আমি কালকে অনেক মিডিয়া আমাকে বলেছেন, এপিপি আনন্দ যখন 8:25 এসছেন, আমি তাকে হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করেছি যে আজকে আমি কিছু বলবো না, কিন্তু যেহেতু নামাজ পড়তে যাচ্ছিলাম বলেছি দুটো, আমি কালকে তাও বলেছি যে আমি ডিটেলস বলতে পারবো না, যা ঘটনা হয়েছে। আমি আপনাকে বলছি, মিরাজ, হু ইজ মেরাজ? মেরাজ কে? আমার কাছে আপনারা যদি চান, আমি মানে জি নিউজ আছেন, চ্যানেল 10, 24 ঘন্টাও আছেন, সবাই আছেন, লিডিং নিউজ আসছেন, আমি আপনার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার কাছে সব ক্লিপ আছে। 22শে জানুয়ারি ফ্রাইডে এবং 23শে জানুয়ারি স্যাটারডে, এই দুদিন কলাবাগানে একটা ঘটনা ঘটেছিল বৈতুল মাল স্কুলকে নিয়ে। সিএন নিউজ এসছিল, এখানে আছেন সিএন নিউজের সাংবাদিক এসছিলেন সেদিন, আর অন্য অন্য সোশ্যাল মিডিয়া ছিলেন। নামটা কি বললেন? বেতুল মাল, এই বেতুল মাল স্কুল আমার পিছনে, এখানে বেতুল মাল স্কুলে। তো সিএন নিউজ, এই যে সিএন নিউজ এসছিলেন। বেতুল মালের যে ঘটনা ঘটেছিল 22 জানুয়ারি ফ্রাইডে এবং হচ্ছে 23 জানুয়ারি স্যাটারডে, যে দুদিন যে ঘটনা ঘটেছিল, কি সেখানে আমার বক্তব্য না, সিএন বেতুল মালের জেনারেল সেক্রেটারি অনারেবল সাইক আহমদ, অ্যাডভোকেট মেহতাব বক্স, দুজন স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে শনিবার 22 তারিখে কি ঘটেছিল এবং 23 তারিখ জানুয়ারিতে কি ঘটেছিল বেতুল মালে। সোরাব সাহেবের নেতৃত্বে প্রায় 400-500 লোক এসে এখানে কলাবাগানে বেতুল মালে ইত্যাদি ইত্যাদি হয়েছিল। আমি ওর ডিটেলসে যাচ্ছি না, সব ক্লিপগুলো দিয়ে দেবো আপনাদের, সমস্ত ক্লিপস দিয়ে দেবো। সেই ঘটনা যে 400-500 লোক কলাবাগানে জড়ো হয়েছিল, তার নেতৃত্ব দিয়েছিল সোরাব সাহেব এবং তার ছেলে আম্বিয়া। আপনি জানেন, আম্বিয়া সাম্বিয়া, রেড রোডের ঘটনা ইত্যাদি সবই জানেন আপনি। আমাকে বলা হচ্ছে গুন্ডাগর্দি করছি, আমাদের অকাত আছে। এক্স এমএলএ, রেড রোডের ঘটনা আপনারা জানেন তো, কি জানেন না? আমার প্রাণ, আমার ভাইয়ের প্রাণ এবং আমার বেতুল মালে আব্দুল রশিদ ড্যানি সাহেব, মেহতাব বক্স অ্যাডভোকেট এবং সাইক আহমদ আইএএস অফিসার, যিনি আমার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। আমাদের 5 জনের প্রাণ, আমাদের প্রাণ, 5 জনের প্রাণ যে কোনো সময় যেতে পারে। ওই 22 তারিখের ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিল মেরাজ। 22 তারিখ 23 তারিখে অনেক ছেলেকে নিয়ে রূপানী স্ট্রিট থেকে, রাজাবাজার থেকে, পুরো ক্লিপ আছে এসে। একটা প্রশ্ন রয়েছে দাদা, আমি বলে দিই, কমপ্লিট করি। ওই দিন 22 তারিখ এবং 27 তারিখে মেরাজের নেতৃত্বে অনেক ছেলেগুলোকে নিয়ে এখানে এসেছিল। সেখানে আমার ভাই প্রতিবাদ করেছিল, সেখানে আমার ভাই প্রতিবাদ করেছিল রাজ, যে আপনি কেন বাইরে থেকে সব ছেলেগুলোকে নিয়ে এখানে আসছেন। এবং সেখানে জোড়াসাঁকো থানার অফিসার ইনচার্জ আমানুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে তারা নিজে দেখেছে মিরাজকে, এবং শুভঙ্কর সরকার ছোটবাবু 22 তারিখে মিরাজকে বলেছে যে তুমি এখানে কেন এসছো, এতজন লোকজনকে নিয়ে যাও এখান থেকে। 22 তারিখে
সেদিনই মিরাজ চ্যালেঞ্জ করে আমার ভাইকে বলেছিল তুমকো হাম দেখ লেগে, তুমকো হাম দেখ লেগে। এবং আমার যতটুকু প্রাইমারিলি যা ধারণা হয়েছে যে ওরা ওখানে আচ্ছা রাজ এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে, আপনি মোহাম্মদ সৌরভের বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি পুরো পুরো জিনিসটা বুঝে নিন, তারপরে আপনি প্রশ্ন করবেন, আমি উত্তর দেবো, আপনার সবার উত্তর দেবো। আগে আগে আমার স্টেটমেন্টটা পুরো কমপ্লিট করতে দিন, না হলে আমি ভুলে যাব। বলছি কি 22 তারিখ 23 তারিখে মিরাজের নেতৃত্বে এখানে কলাবাগানে বাইতুল মালে হামলা হয়েছিল, সাইক আহমেদের উপর হামলা হয়েছিল, মেহতাব সাহেবের উপর হামলা হয়েছে। এখন ডিটেলসে যাচ্ছি না, সব সিএনটিভিতে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে আছে, এবং হালাতে বাঙ্গাল সেখানেও আছে, আরো অনেক সোশ্যাল মিডিয়া, আপনিও ছিলেন বোধহয়, কি নাম তোমার? শাহানও এসেছিল সেদিন, শাহানও জানে, শাহানের কাছে পুরো ক্লিপ আছে, মিরাজের নেতৃত্বে হয়েছিল। তখন মিরাজ আমার ভাইকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এইবার হচ্ছে মিরাজ থাকে কোথায়, তার বাসস্থান কোথায়? হারানবাড়িলে, সে ওখানেই থাকে। আমার ভাই ওখানে যাবে, ওর গাড়ি আটকাবে, ওকে ডিস্টার্ব করবে, আর একা, তার সাথে একটা ছেলে ছিল সোনু বলে। ইট ইজ ইম্পসিবল। প্ল্যান করে ওর উপর একটা টার্গেট ছিল, ওকে দেখেছে, ওখানে আটকেছে, 20-25 জনকে ঝামেলা করে মব লিঞ্চিং করে ওর মার্ডার করার ইচ্ছা ছিল। আমি শুধু আপনাদের কাছে একটা ক্লিপ দিচ্ছি। এটা হচ্ছে প্রথম কথা, যে কিভাবে এবার আমার ভাইয়ের খবর শুনে আমি যখন গেছি, ওসি ওখানে প্রেজেন্ট দেয়ার, অল অফিসার্স, বড়বাজার থানার সিনিয়র অফিসাররাও ছিলেন, আমি সেখানে গেছি। আমি কালকেও বলেছি, আবার বলছি, আমরা যখন 10 জন 12 জন গেছি, কেন গেছি? আমার ভাইয়ের মসজিদে আছে শেল্টার নিয়ে, ও আমাকে বলছে যে আমার প্রাণ চলে যাবে, ওকে মসজিদে রাখা হয়েছে। পুলিশ ওখান থেকে নিয়ে এসছে, পন্নু ফাকিরা, আচ্ছে ভাই, এরা দোকানদাররা ওকে বার করে পুলিশের হ্যান্ড ওভার করেছে। সেখানে আমি শুনেছি, আমি যাব না, ভাইকে বাঁচাতে যাব না, রিকভার করতে যাব না, বাঁচাতে যাব না, আমরা গেছি। তার উপর আমার উপরে, আপনি দেখেছেন সমস্ত ক্লিপ গুলো দেখেছেন, আমার উপরে কিভাবে তাজের নেতৃত্বে, এই তাজ হচ্ছে তার নির্বাচনে, মিরাজ হচ্ছে তাকে ফুললি সাপোর্ট করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ফাগুপ্তা পারভিনকে হারানোর ক্ষেত্রে এই মিরাজেরও একটা ভূমিকা আছে। আজকে মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আজকে মুখে হচ্ছে এমএলএর কথা বলছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শান্তি চান, সেই মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থীকে হারিয়েছে না, তখন মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থীকে হারিয়েছেন আপনার। আমার ওয়ার্ড 39-43, আমি কেন, কিন্তু তাজ মিরাজের যে তাণ্ডব, তাকে ঢাকার জন্য, যেহেতু মিরাজ তাকে সাপোর্ট করেছে নির্বাচনে ফুললি, তার এভরিথিং, তার ফেসবুকে যান, মিরাজের ফেসবুক আমার কাছে আছে, তার ফেসবুকে যান, তাজের সাথে কি সম্পর্ক আছে, এই সব সম্পর্কগুলো বের হচ্ছে। তাজের নেতৃত্বে 100-150 ছেলে আমার উপর যেভাবে হামলা করেছে, আমি শুধু ভাইকে প্রাণ বাঁচাতে গেছি, আমার ভাইকে আনতে গেছি, আমার ভাইকে আনতে গেছি, রিকভার করতে গেছি, আমার উপর কিভাবে অ্যাটাক করেছে। আমরা যখন গেছি, আমাদের একটাও কোনো ক্লিপস দেখাতে পারবেন না যে আমাদের কোনো ছেলে, 12-15টা মাত্র ছেলে, তার হাতে কিছু আছে। ওদের হাতে দেখেছেন বাঁশ, হকি, ওসি প্রেজেন্ট, নিজে ওসি হকি ছিনছেন, অফিসাররা হকি, বাঁশ, কাবাবের শিখ, কিভাবে, আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না, আপনাদের কাছে ক্লিপস আছে, চাইলে আমি পুরো ক্লিপসটা দিয়ে দেবো, কিভাবে আমার উপর ওই আমার সাথে যে 10-12টা ছেলে ছিল, কিভাবে আমাকে সেফগার্ড চাপার নিয়ে দৌড়েছে, আমার চেয়ার ফেলেছে, আমার এই হাত, আমি আজকে সকালবেলা ছবি তুলে এসেছি, আমার এই হাত ডক্টরের সন্দেহ হচ্ছে যে ফ্র্যাকচার হয়েছে, এখানে আমার মাথায় লেগেছে, আমার পিঠে লেগেছে, কিভাবে আপনারা দেখেছেন। আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন শেষ করছি, বাংলাতেই বলেছি, পরে হিন্দি উর্দুতে যদি বলেন বলবো। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, 25 জন 30 জন মিলে মেরাজের নেতৃত্বে রাজের উপর যে হামলা হয়েছে, এটা পরিকল্পিত। এটা 22 তারিখের বাইতুল মালকে কেন্দ্র করে যে এখানে মিরাজ লিড করেছিল, এখান থেকে পুলিশ তাড়া দিয়ে ওকে পালিয়েছিল, আমার ভাই তাকে প্রতিবাদ করেছিল, তুমি কেন এসছো, তার বদলা নিতে ওকে একা দেখেছে, ওখানে 25 জন 30 জন মেরেছে। আমি খালি এবার একটা প্রশ্ন করতেই হচ্ছে, একা করে প্রশ্ন করুন। আপনি মারাত্মক একটা অভিযোগ তুলেছেন, মোহাম্মদ সৌরভ এর পেছনে রয়েছে আমিয়া সঙ্গিয়ার বাবা, এই বিষয়টা যদি সুস্পষ্ট করে বলেন, এবং প্রাণ সংশয় রয়েছে, আপনাকে প্রাণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে কিংবা মেরে ফেলার ভয়? আমি এক এক করে আসি। কালকে তাজা টিভিতে একটা ক্লিপ আছে, আপনাকে দিয়ে দেবো।
তিনি হচ্ছেন তাজা টিভির সাংবাদিক। যখন প্রশ্ন করছে, এক পানওয়ালা বলেছে যে জসিম কা ভাই, দেখেছেন আপনার তাজা টিভি ক্লিপটা দেখেছেন কেউ? দেখেছেন? তাজা টিভিতে কালকে একটা বেরিয়েছে, দেখবেন। একটা পানওয়ালাকে জিজ্ঞেस করে पानवाला बोलते जो उसका भाई को सब मिलके मार रहा था, पंजाबी फट गया, पैजामा फट गया, उसका भाई दौड़ के भागा और उसके बाद में फिर जसीम आया, पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो जसीम ईटा पत्थर वो लोग चलाने लगा, जसीम को भी मारने लगा, हमको भी एक तो ईटा लगा है। और उसके बाद फिर सोराब भाई यहाँ पर आए और सोराब भाई आकर के चिल्लाने लगे, गाली देने लगे। ये किसका स्टेटमेंट है? वहां हारनबाड़ी लैंड का एक पान वाले का, একজন পানওয়ালার স্টেটমেন্টটা তাজা টিভিতে আপনি দেখে নিন। আপনাদের দলেরই লোক কি আমাদের দলের সাথে ওনার কোনো সম্পর্ক নাই, এটা আমার বক্তব্য নয়। যখন হিট অ্যান্ড রান কেস হয়েছিল রেড রোডে 26শে জানুয়ারি, সাম্বিয়ার গাড়িতে যখন লোক মারা যাচ্ছিল, তখন এই প্রশ্ন উঠেছিল যে আমাদের লোক, আমাদের ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট, আমাদের ব্রেক ওব্রায়েন সাহেব, পার্থ চ্যাটার্জি এবং ফিরাদ হাকিম সাহেব পার্টির পক্ষ থেকে বলেছিলেন যে আমাদের সাথে কোনো, আগে উনি লেফট ফ্রন্টে ছিলেন। আমি আবার বলছি, কিন্তু কালকে উনি গেছেন কেন? এই পানওয়ালা বলেছে যে উনি গেছেন, গালি দিচ্ছিলেন, কেন গেছেন জানি না। सर एक और है, महराज ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें स्टेटमेंट में ये कहा है कि आपने उसको फोन पे कहा कि तुम रिकॉर्ड करो कि तुमको घर से उठा के मारेंगे, पूरा दुकान को जला देंगे। तो रिकॉर्ड करके उनको रिकॉर्ड सुनाने बोलिए। नहीं तो ये स्टेटमेंट दिया है अमर भाई राज, तो इसमें क्या कितनी सच्चाई की उसने? अमर भाई राज के देखो ঘোড়া না দিলে ঘোড়া ঘুরে রাখুন, রাখুন রাখুন নিচে। आपका भाई वीडियो में देखा है कि वहाँ पर बड़ा बाबू भी मौजूद थे, तो क्या पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? मतलब आप इसमें क्या, इस बात में क्या नकार रहे सिरे से, क्या सब कुछ नहीं, तो आपने कॉल नहीं किया था? দাদা বিষয়টা একটু স্পষ্ট और করে कानूनी দিন। काज का ये कहना আপনাদের है कि মোহাম্মদ সোহেল কি এখন আপনাদের দলে নেই? সেটা আমার পার্টি নেতৃত্বকে জিজ্ঞেস করবেন। আমরা যতটুকু জানি, যা আমরা মিডিয়াতে দেখেছি, আমাদের নেত্রী এবং আমাদের ব্রেক অব্রাম, পার্থ চ্যাটার্জি এবং হচ্ছেন ফিরাদ হাকিম সাহেব, আমাদের পার্টি যারা নেতৃত্ব, তাদের পক্ষ থেকে যে স্টেটমেন্ট হয়েছিল সেটা রিটার্ন কি মানে হিট অ্যান্ড রান কেসের পর আমাদের পার্টির স্টেটমেন্ট আছে। তিনি থাকতেও পারেন, নাও থাকতে পারেন, এটা তো আমি বলতে পারবো না, আমার পার্টি নেতৃত্ব আপনার বলবে। ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? আপনাকে কি খুন করার চেষ্টা হচ্ছে? আমি আপনাকে স্পষ্ট কথা বলছি যে কেন 22 তারিখে প্রায় 100 লোককে নিয়ে মিরাজ কলাবাগানে এসেছিল বৈতুল মালের উপর হামলা করতে। কি সন্দেহ আপনারটা বলুন, আপনার সন্দেহটা কি? আপনাকে কি টার্গেট করা হচ্ছে? অবভিয়াসলি বৈতুল মালে আমি এসেছিলাম, আমি সিকিউরিটি প্রাণটা বাঁচিয়েছিলাম, সেখানে সিসিএন টিভি ছিল। ওই স্টেটমেন্ট গুলো দেখবেন, আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না, সেখানে মিরাজ এসেছিল কলাবাগানে। কেন এসেছিল কলাবাগানে? 22শে জানুয়ারি মিরাজ কলাবাগানে প্রায় 100 ছেলেকে নিয়ে, বাইরে থেকে সারা কলকাতার ছেলেকে নিয়ে লিড করে এখানে আর্মস ফার্মস নিয়ে এসেছিল। এখানে পুলিশ তাকে তাড়া করেছিল। কেন 22 তারিখে এসেছিল? প্রশ্ন তো। বলুন আপনি কেন আপনার সন্দেহটা শেষ হচ্ছে না? বৈতুল মালে হামলা করতে এসেছিল। আপনার উপরে? হ্যাঁ, বৈতুল মালের কিছু ব্যাপারটা ছিল, কমিটির বিষয়টা নিয়ে হামলা করতে ছিল। তখন আমি প্রশাসনকে ডেকে এখানে পিস রক্ষা করেছিলাম, শান্তিভাবে সবটাকে মিটাবার চেষ্টা করেছিলাম। পুলিশ কেন কোনো অ্যাকশন নিল না দাদা? আপনারা নিশ্চয়ই অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অবভিয়াসলি। কোনটা? এই যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এতদিন ধরে, জানুয়ারি মাস থেকে এখন আবার একটা ঘটনা ঘটলো। জানুয়ারি মাসে ওকে এখান থেকে যখন এসছিল, তারই নিরিখে আমার মনে হচ্ছে যে রাজকে টার্গেট করেছে এবং ওখানে করে মব লেঞ্চিং করে ওকে মারার চেষ্টা করেছে। সেখানে স্থানীয় মানুষ বাঁচিয়েছে এবং সে না ওই মার্কাজ মসজিদে পানা নিল, না হলে ওর প্রাণ চলে যেত। कल का ये जो घटना हुआ, क्या आपका जो बैतुल माल वाला जो मामला है, जो प्रेसिडेंट या उसी से रिलेटेड है? इससे रिलेटेड मामला है क्या? हो भी सकता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, शोराब साहब, मैं तो वही सवाल कर रहा हूँ ना कि 25-30 लोगों ने राज को क्यों मारा और उसके बाद में शोराब साहब वहां क्यों आए? मगर इरफान अल्ताफ का जो कल स्टेटमेंट ये है कि आपको इस मामले में आकर सुलझाना चाहिए था, ना कि आप 100-150 लड़कों को लेकर आप गए। आप मुझे 100-150 तो छोड़ दीजिए, आप मुझे 100-150 छोड़ दीजिए। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 12-15 लोग से ज्यादा होंगे, फिर आप जो कहिए। और उसके बाद आप तो देख रहे वीडियो क्लिप में, हम लोग जान बचा के भाग रहे हैं। जान बचा के भागते कौन लोग हैं? पुलिस कुछ नहीं क्यों किया? तो क्यों पुलिस प्रशासन है, सतर्क है। यहाँ से भी जो एफआईआर हुआ, यहाँ से भी 2-3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और वहां से भी 5-7 जन लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ,
जो लोग मलवी से, अगर मैं भी मलवी तो मुझे भी अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है, अच्छा मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। जो मिराज है उसका दुकान, उसका पूरा कारोबार मेरे वार्ड में, केला बागान में पूरा कारोबार है। आप बताइए, केला बागान में उसका दुकान, उसका मकान, उसका कारखाना, उसके लोग, उसका कारोबार में कोई हमला हुआ? अगर मुझे हमला ही करने का लिया तो दुकान यहां पर है, 5-5 दुकान है, 3-4 कारखाने हैं, करोड़ों का कारोबार है यहां पर, और उसके 150-200 लेबर यहां काम करते हैं। सारा प्रॉपर्टी उसका यही है केला बागान में। आप बता दो कल से लेकर अभी तक किसी को नुकसान पहुंचा है? मेरा तो सवाल तो है, राज पे हमला क्यों हुआ? और जब मैं गया अपने भाई को रिकवर करने, मुझ पर भी हमला क्यों हुआ? और शराब साहब वहां कैसे पहुंचे? सर, अगर कल के मुद्दे की बात करें तो इरफान अली ताज का ये कहना है कि आपके साथ जो लोग गए थे उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी थे जिसके वजह से हर किसी को मारा गया। कौन, किस लिए मारा? ताज का वो भी बात मान लीजिए, वो हमको पॉलिटिकल गुरु समझते हैं। ये भी बात बोले ना कि मेरे पॉलिटिकल गुरु है, हमारे बड़े भाई है, तो उनको तो बड़े भाई को फोन करना चाहिए था जब वो मॉब लेकर के आ रहे थे और हमला कर रहे थे। एक मॉब को मेरे तरफ लगा दिया। अच्छा, उनका स्टेटमेंट क्या था कि जसीम भाई को कुछ लोग, जसीम भाई को कुछ लोग दौड़ाने लगे और कुछ हमला किए, थोड़ी थोड़ी चोट भी आई। बोला ना ताज ने ये, आपने ताज के बात कहा, ताज ने ये बात कहा ना कि जसीम भाई को चोट आई है, तो ताज को तो मेरे पास आना चाहिए था, बड़े भाई के पास पूछना चाहिए था, बड़े भाई क्या हुआ आपको? ताज के लड़के थे, ताज अगर आके खड़ा हो जाता तो मुझ पर हमले नहीं होते। सर, उनका साथ साथ ये भी कहना था, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आपको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था, हायर अथॉरिटी के साथ बात करनी चाहिए। आप पहले जाकर के बहु बाजार थाना के ओसी से पूछिए, उनको बताया गया कि नहीं? और जब मैं गया था वहां पूरा फोर्स था कि नहीं? अगर आप बताइए, आपके भाई को, अगर आपको खबर मिलेगी कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, नौज़बिल्लाह किसी के भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप जायवादात पर पहुंचेंगे कि नहीं? हमारा भाई मस्जिद से फोन करके गुहार कर रहा है कि मेरा जान खतरा में, मैं वहां पहुंचू कि नहीं पहुंचू? आप मुझे बता दीजिए, आग लगेगा कहीं पर, आपके दुकान में आग लगेगा, आपको खबर देगा कारीगर कि आपके दुकान में आग लगी, आप वहां पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप मुझे बता दीजिए। अगर मैं गया तो प्रशासन वहां था कि नहीं था? ओसी वहां थे कि नहीं थे? बता दीजिए आप हमको। आपके पास कोई है कि हम लोग कोई डिफेंस लेके गए थे? हमारे पास में कोई इस्लाह था? हमारे कच्चे किसी छिलो, हम नहीं जाएंगे। अगर मेरे भाई को कोई जिंदा मार दिया साहब के वहां से जो है बार बार बताया जा रहा है कि 3 बच्चे हॉस्पिटलाइज है, जो कि 2 रॉयल नर्सिंग होम है, एक सदर नर्सिंग होम है, जिसको चापड़ लगा है, तो खुद से खुद को क्या चापड़ मान लिए, ये थोड़ा बताएं। अब देखिए, चापड़ लगा है कि गिर के सर कटा, ये मुझे नहीं मालूम। नंबर 1, चापड़ लगा है, अगर चापड़ लगा है तो इतना वीडियो क्लिप्स है, चापड़ का तो क्लिप्स आ जाना चाहिए, कोई चापड़ लेके जा रहा है। इतना सारा वीडियो क्लिप्स है, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो सब दे रहे हैं आपको। मेरे पास तो और भी है, अभी तो दिया, वो राज का दिया वो आपको कि राज इतना बुरी तरीके से जख्मी हुआ। पान वाला का स्टेटमेंट दिया क्या? जो पान वाला ने हमारे ऑनरेबल डीसी 2 सेंट्रल डिवीजन नमरोज खान से सुराब साहब बहस किए, नमरोज खान से सुराब साहब बहस किए, और नमरोज खान साहब से जो बहस किए, मैं आप सब लोगों से कहूंगा, मैं वो जुमला नहीं बोलूंगा, आप जाके नमरोज खान साहब से पूछिए कि सुराब साहब ऑन स्पॉट पे क्यों आए, जसीमुद्दीन क्यों गया स्पॉट पर? ये सवाल उठ रहा है ना कि जसीमुद्दीन क्या भाई का जान खतरा में था गया, शोराब साहब क्यों ऑन स्पॉट गए? बताइए मुझे। शोराब साहब ऑन स्पॉट में जाना चाहिए था उनको, बताइए आप हमको। और जाके नमरोज खान साहब से बहस करनी चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि नमरोज खान साहब को उन्होंने क्या कौन सी बातें कही। आप नमरोज खान साहब से पूछिए कि उनके साथ कैसे बदसलूकी, बदतमीजी और किस तरह से उनसे बहस किया गया। नमरोज खान साहब से पूछिए जाकर के कि शोराब साहब वहां क्या जुबान के इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने सुना नहीं है, मैंने दूसरों का सुना है, मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, किसी के सुनकर बयान नहीं दूंगा। मैं आपसे दरखास्त करूंगा हाथ जोड़ करके कि ऑनरेबल डीसी 2 नमरोज खान साहब से पूछिए कि कल ऑन स्पॉट पर शराब साहब जो आए थे, उसके चश्मदीद गवाह जो हैं, पान वाला है, ताजा टीवी में स्टेटमेंट दिया कि शराब साहब वहां पर आए थे, और उसके बाद दूसरा गवाह है डीसी 2 सेंट्रल नमरोज खान जी, उनसे पूछिए कि शराब साहब वहां क्या करने के लिए आए थे और शराब साहब क्या बोल रहे थे। और वो बयान अगर आप नमरोज खान तो बोलेंगे, हमको नहीं लगता कि नमरोज खान साहब बोलेंगे कि शराब ये कह रहा था, शराब वो कह रहा था, लेकिन नमरोज खान साहब भी जानते कि शराब जो कह रहा था उससे ये जाहिर होती है कि शराब साहब इन्वॉल्व है। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, शराब साहब क्यों पहुंचे? हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, शराब साहब के लड़के अंबिया क्यों पहुंचे? आप बताइए हमको, क्या उनसे कुछ मामला था? शराब भाई से तो हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। ताज जो कहता कि मेरे बड़े भाई है, ताज खुद जब लेके मॉब आ रहा तो मैं ताज से पूछा, ताज ये क्या हुआ, राज को ये लोग इस तरह से क्यों मारा?
ताज हमको धक्का दे करके दूसरा मॉब को मेरे पीछे लगा दिया। वो लोग हमको किस तरह से टेबल फेंक रहा है, बेंच फेंक रहा है, कुर्सी फेंक रहा है, किस तरह से आप बात कर रहे हो। आप बोलो एक काउंसिलर, रूलिंग पार्टी का काउंसिलर को किस तरह से जद्दोकोब किया जा रहा है। आप सोच सकते हो? आप सोच सकते हो? यहाँ सारे उनके दुकान है, कारखाने हैं, सब कुछ है। आप सोच सकते हो हम लोग कुछ किया? अभी तक कुछ किया? और मैं करूंगा भी नहीं। मैं इस नेचर का इंसान नहीं हूं। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 22 जनवरी को मिराज के नेतृत्व में जो यहाँ पर हमला हुआ था, उसी का प्रतिवाद राज ने किया था, जिसका बदला वो लेकर के मॉब लिंचिंग के जरिए राज को मारना चाह रहा था। और राज मरकज मस्जिद में जाकर उसका प्राण बचा। एक भाई जब रो के कह रहा है कि मेरी जान बचा लो, हम वहां पर गए। हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या मैंने गुनाह किया? क्या मुझे जाना नहीं चाहिए था? क्या ताज को एक ऐसा रोल अदा करना नहीं चाहिए था जिससे आज मैच में मैं कहता कि ताज ना होता तो मेरा भाई मर जाता? क्या ताज मेरे भाई को जिंदगी बचाने के लिए कोशिश किया? अच्छे भाई ने किया, पन्नू फकीरा ने किया। और ताज के लिए एक स्टेटमेंट देता है कि हम लोग बैठेंगे समाजी तौर पर, राज की गलती है तो उसको देखेंगे। आप बेगर जाने, बेगर बूझे, बेगर समझे कैसे कह रहे राज की गलती है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, सुराब भाई क्या करने के लिए वहां आए? सुराब भाई क्यों वहां पर गाली गलौज कर रहे थे? सुराब भाई क्यों नमरोज खान को जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे थे नमरोज खान को? नमरोज खान साहब ने कहा कि जाइए ना, झमेला मिट गया, आप क्यों झमेला बढ़ा रहे हैं? पूछिए नमरोज खान साहब। मैं ताज से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को समर्थन करते हैं कि सुराब साहब को इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या अंबिया को जाना चाहिए? सुराब साहब रहते हैं 41 नंबर वार्ड में, अंबिया रहते हैं मछुआ में, फिर वो क्यों गए वहां? क्यों गए वहां? हम तो गए, हमको तो मारा गया, हम तो वापस चले अपना इलाज करने के लिए। हम वहां से चले गए, बाकी जितने लोगों को चोट लगा हम लोग इलाज के लिए चले गए। अभी भी राज जो है जेर इलाज है, हॉस्पिटल में भर्ती है। आप क्या चाह रहे हैं? आपके क्या आपका अगर कोई सवाल और है तो पूछिए। पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है टीएमसी वर्सेस टीएमसी का जो है। आप देखिए, मैं बात बोल रहा हूँ, कल ताज ने भी ये बात कहा और ये बात सच कहा उसने, ये टीएमसी वर्सेस टीएमसी नहीं है। मिराज, मैं बार बार कह रहा हूँ, मिराज, ये मिराज कौन है? क्या आपने फायर किया मिराज के नाम पर? बिल्कुल। देखिए, मुझे चोट लगी है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, मोअतबर शख्सियत ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा बेटा आगे मत बढ़ाओ बात, बैठ करके हम लोग देखते हैं। मैं उनकी इज्जत के लिए, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है, मुझे बहुत चोट लगा। आपने देखा है कितना टेबल मेरे पर फेंका गया, आपने देखा है कितना टेबल फेंका गया मेरे पर, कितना बेंच फेंका गया, कबाब का सीख फेंका गया, चापड़ लेके दौड़ा गया, लेकिन मैंने फायर नहीं किया। उन मोअत्तबर, उन मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का रिक्वेस्ट था कि बेटा आगे मत बढ़ाओ, मैंने फायर नहीं किया। मुझ पर जो कुछ हुआ मैंने फायर नहीं किया, लेकिन जिन जिन लोगों पर हुआ है, राज जेर इलाज है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इंटरनल, अभी तो मैंने आपको दिखाया दाग, इंटरनल अंदर में इतना चोट है उसको। मॉब लिंचिंग, जूते का बूट से मारा गया उसको, जूते का बूट से, हेलमेट से मारा गया। वहां पर सीसी कैमरा होगा, सीसी कैमरा अगर पुलिस निकाले देखे तो किस तरह से राज पर हमला किया गया। हमने डायरी नहीं किया क्योंकि एक मोअत्तबर शख्सियत ने मुझे फोन किया, एक अजीम जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, समाज के बहुत मोअत्तबर शख्सियत। आप अभी बोल के गए कि आप उनकी इज्जत करते, तो भाई से बढ़ के आपका इज्जत है क्या? नहीं, भाई का प्राण बचाने के लिए मैं वहां गया था, भाई का प्राण बचाने के लिए गया था, लेकिन मुझे मार दे, मुझे कत्ल कर दे। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत है कि मैं आगे नहीं, जब उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि बेटा आगे मत बढ़ाओ बात, मैंने जीडी नहीं की, मैंने कंप्लेन नहीं किया, मैंने अभी तक कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं किया। मेरा रिपोर्ट, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा है कि सभी लोग कल मुझसे फोन कर रहे थे, बारी बारी मिलना चाह रहे थे। मेरी तबीयत भी कल अच्छी नहीं थी, मेरा तरावी कल था, आज भी मेरा तरावी है, आज मेरा मुकम्मल है तरावी, तो कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत दर्द हो रहा था मेरा यहाँ पर बाजू में, बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए हम कल इस स्थिति में भी नहीं थे। तो फिर बारी बारी सबसे बात करने से गुमराही होती है और हमको मालूमात भी नहीं था, सारी जानकारी भी नहीं थी, और मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं तमाम मालूमात हासिल करके तब आपसे बातचीत करूँ। जज्बात में आकर के और फौरी तौर पर रिएक्शन देना ये मेरा जेब नहीं देता, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा एक स्टेटमेंट, मेरा एक भी स्टेटमेंट वो जो है गुमराही फैला सकता है। इसलिए मैंने आपके सामने जितनी भी बातें रखी हैं मैंने तफसीस करके रखी हैं, और मैंने अभी तक कोई जीडी नहीं किया है, बाकी सारे लोगों ने जीडी एफआईआर नहीं करने का वजह तो वही समझा जाए कि इरफान अली ताज ने जो प्रस्ताव रखा है कि हम लोग आपस में मिल बैठ के सुलझा ले, वही इमरान ताज ने जो प्रस्ताव रखा है वो मैं ऑन कैमरा कहता हूँ और ताज को कहता हूँ कि नए नए काउंसिलर हुए, मेरा तीसरा बार है,
अभी बहुत दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। आपने जो कल किया है, आपने जो कल किया है, आप बोलते ना मेरा पॉलिटिकल गुरु है, आपने कल गलत काम किया। आपको जब हम हारूनबाड़ी लैंड में जब हम खड़े थे और आप जब 150-200 लोगों को लेके आए थे, सबसे पहले मुझे गला लगाना चाहिए था, सबसे पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, बड़े को सलाम करना चाहिए था। आप हमको देखे, धक्का दिए और आगे बढ़ गए, और जैसे आगे बढ़े आपका एक मॉब जो है वो मेरे पीछे मारता हुआ हमको खदेड़ते हुए मोहम्मद जान हाई स्कूल तक हमको मारते और खदेड़ते हुए चला गया। और मेरे साथ में 8-10 लोग नहीं होते और सेफ नहीं करते मुझे, तो शायद मेरी लाश वहां से जाती। ताज जब आपने मुझे देखा था, आपको मेरे पास आना चाहिए था, सलाम करना चाहिए था। मैं बड़ा हूं ना, आपका सियासी गुरु हूं ना, आपका फर्ज नहीं है? आपका बड़ा भाई आपके चौखट पर, आपके वार्ड पर आया है, एक काउंसलर नहीं, आपका बड़ा भाई है, आपको हमसे गला लगाना चाहिए था, मुसाफा करना चाहिए था, वही मसला हल हो जाता। आप हमको बैठा लेते, अगर ताज हमको पकड़ के बैठा लेता, वही मैं ताज से कहता कि ताज चलो ना, राज के साथ घटना हुआ है, देखो ना, राज को बुलाओ, देवजीत बाबू भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, राज पे घटना हुआ। लेकिन नहीं, राज को मुनज़्ज़म तरीके से 20-25 लोगों ने मारा, वो मस्जिद में पनाह लिया, और हम लोग जब इंसाफ के लिए गुहार लगाने के लिए गए, अपने भाई को बचाने के लिए गए, तो ताज के क़यादत में तमाम लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। और ताज अपनी ज़बान से कह रहा है, अल्लाह का ये शुक्र है, अल्लाह का मैं एहसान मानता हूं कि ताज के ज़ुबान से ये बात निकला कि कुछ लोग जसीम भाई पर तुल गए। एक जसीम भाई पर तुल गए किस लिए? जसीम भाई का क्या गुनाह है? जसीम भाई पर तुल गए, तुम्हारे भाई पर तुल गए, तो तुम अपने भाई को बचाओगे नहीं? तुम तो सबको छोड़ करके काउंसलर को बचाओगे, तुम तो सबको छोड़ करके काउंसलर को बचाओगे, अपने भाई को बचाओगे। तुमको सबको छोड़ करके मेरा पास आना चाहिए था, मेरा गला। अगर हमको बचाते हुए ताज का पंजाबी फट जाता तो हम ताज को सलाम करते, ताज का आरती उतारते। हम ताज के लिए वो उम्रा में जा रहा ना, पहले उसको तलाफी करने बोलो, नहीं तो उसका उम्रा नहीं होगा। पहले ये तलाफी करना होगा ऑन कैमरा में कि तुम्हारे क़यादत पर मुझ पर हमला हुआ, और तुमको इस बात का कैमरा में इकरार करना पड़ेगा। तुमने हमको देखा लेकिन हमसे बातें नहीं की, तुमने हमको देखा लेकिन सलाम तक नहीं किया, तुमने हमको देखा लेकिन पूछा भी नहीं कि जनाब आप यहाँ क्यों आए। आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनकी क़यादत में आप पे हमला हुआ, तो इसके खिलाफ आप कोई कानून कार्रवाई करेंगे? जहाँ जो मैंने कहा ना, मैंने FIR अभी तक नहीं किया है, क्योंकि एक मुतबर शख्सियत ने कहा बेटा आगे मत बढ़ाओ, और बाकी जो लोगों ने किया। जैसे सुनने में आया ट्रैफिक को लेकर के ये मामला हुआ, गाड़ी लगी हुई थी, और सुनने में आया कि जहाँ पे ये मामला हुआ वहाँ पे एक डाला है, वो डाला पहले किसी पप्पू का हुआ करता था, अभी वो मिराज साहब के नाम पे हुआ, उसके लेकर केस भी हुआ 2 महीना पहले, अभी शायद वो बेल पे भी है। तो क्या ये सारे झगड़े की जड़? मैंने तो ये बात कह रहा हूँ, मिराज के नाम में कई FIR हैं बहु बाजार थाने में। ये पप्पू जो एक लड़का था जो वहां डाला लगाता था, वो डाला हटा करके आज मिराज का डाला हो गया। वहां पर जितना भी डाला है, मिराज धीरे धीरे तमाम डाला को कब्जा कर रहा है। मिराज की एक्टिविटीज के बारे में मैं क्या बोलूं? केला बागान में भी 22 तारीख को जो बैतुल माल का मामला हुआ, उसमें भी मिराज को नहीं आना चाहिए था। मिराज जहां तहां आ रहा है। राजा बाजार, मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, राजा बाजार में जो ताज रेस्टोरेंट है, फैक, याद है आपको? एक बार गोली बम चली थी राजा बाजार में, मेरे पास वीडियो फुटेज है, वहां पर भी अंबिया और मिराज है। आप देखिए, कहीं पर भी, कोई भी जगह में कहीं पर भी कुछ होता है, मिराज। आपको कितना वीडियो क्लिप चाहिए? मैं दे दूं आपको सब वीडियो क्लिप, जिसमें फैक अरेस्ट हुआ था, याद है? फैक राजा बाजार का ताज रेस्टोरेंट ना, ताज होटल, ताज रेस्टोरेंट, फैक वहां था, गोली चली थी, बम चला था, याद है? गोली चला था, बम चला था, और उस वक्त फैक वांटेड था, फिर फैक अरेस्टेड हुआ। कई लड़कों के नाम थे उसमें, मिराज का भी नाम था, मिराज वहां भी था। बैतुल माल में 22 जनवरी को होता है, मिराज यहां भी आता है, वहां पर जो है डाला, किसी का डाला हटा दो। और आप देखेंगे, मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, पप्पू को भी किस तरह से ट्रेड किया, वो वीडियो क्लिप भी मैं आप सबको दे दूंगा कि अभी 2-4 महीना पहले पप्पू को भी टेलीफोन में मिराज ने कितना गाली दिया, मार देंगे साला, काट देंगे साला। ये मिराज है, मिराज है। लेकिन मिराज का कहना है कि आपने फोन करके कहा कि मैंने मिराज, जब मेरा भाई हमको फोन किया, मैंने मिराज को फोन किया, और मिराज क्या कहा? मैंने कहा मिराज को रिकॉर्डिंग कर लो। जब मैंने ये बात कहा कि रिकॉर्डिंग कर लो, तो कोई अगर रिकॉर्डिंग करेगा तो मैं उसको, मैंने तो फोन किया मिराज, क्योंकि देखिए बता रहे हैं, मिराज का बड़ा भाई नजरान नाम है। आपको मैंने क्या कहा? नजरान और उसके कई भाई जो हैं, 5-6 भाई हैं, उन्हें सब यहाँ दुकानदार है, दुकान है उनका। मेरे वार्ड में वो सारा दिन रहते हैं, सुबह 10 से लेके रात के 10 बजे तक, और पूजा के वक्त में रात 2 बजे तक, 2:30 बजे तक मेरे वार्ड में रहते हैं वो लोग। उनके तमाम भाइयों से मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, उनके बड़े भाई से ताल्लुकात मेरे अच्छे हैं। उनका बड़ा भाई हज में गए, मैं मिराज के घर गया, उनके भाई का हज में जा रहे थे मिलने के लिए। नजरान हज में गए, मैं गया उनसे मिलने के लिए। इन पूरे परिवार के साथ में मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं।
लेकिन मिराज के बारे में मैं ये बात कहूंगा, तो मिराज को मैंने फोन किया कि राज हमको फोन किया है, तुम उसको मारे हो। तो मुझे क्या बोलते हैं जानते हैं? हम नहीं मारा है, जनता धुलाई हुआ, जनता धुलाई। हम नहीं मारा है, जनता धुलाई हुआ, जनता धुलाई। हम बोला राज को जनता क्यों मारेगा? राज यहाँ का रहने वाला, वहां से आ रहा था एक पंजाबी लेकर, उसको जनता क्यों धुलाई कर देगा? हमको बोला जनता धुलाई हुआ, जनता। अच्छी बात है ना। मैंने मिराज को भी फोन किया, मैंने मुराद से भी जानने की कोशिश की। अब वो क्या कर, हमको फोन करके धमकाया। तो भाई तुम्हारा मैं रिकॉर्डिंग है तो सुना दो लोगों को, मैंने धमकाया। मैंने तो उससे फोन करके पूछा, क्योंकि उसके भाइयों से ताल्लुकात मेरे अच्छे हैं, लेकिन उसने मुझे टेढ़ा जवाब दिया। जनता ने मारा है, पब्लिक धुलाई हुआ, पब्लिक धुलाई। इसका मतलब मॉब लिंचिंग करके राज को मर्डर करने का एक मंसूबाबंद साजिश है। क्या इस साजिश में मिराज, अंबिया और शुराब भाई की उपस्थिति इस बात पर इशारा दे रहा है? क्या इस साजिश में वो भी इन्वॉल्व है? या क्या 22 जनवरी का जो बैतुल माल में हमला हुआ था, जिसमें मिराज 100 लोगों को लेकर के आए थे और यहां से पुलिस उसको खदेड़ा था, और राज ने भी उसको कहा था कि आप हमारे इलाके में क्यों आए हैं इतना गुंडा बदमाश आर्म्स लेकर के, क्या उसी का बदला था? क्या ये मंसूबा? और मैं ताज से ये बात कहना चाहता हूं, तुम नए नए काउंसिलर्स हुए हो और हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। तुम जब काउंसिलर हुए मैंने तुमको दुआएं दी हैं। एक जनप्रतिनिधि हो, मेयर का फोटो लगाते हो, ममता बनर्जी का फोटो लगाते हो, लेकिन ममता बनर्जी के जो मुखालिफ हैं उनकी पुष्पनाही करते हो। गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट जो जहर उगलते हैं सुबह से रात तक, उनकी पुष्पनाही करते हो। ठीक है, आप हमको पॉलिटिकल गुरु मानते हो ना, बोलने से होता है। पॉलिटिकल गुरु का एक पॉलिटिकल मशवरा है, सबसे बेहतर तरीका है तुमने जो कल किया है, एक जिम्मेदार शख्सियत की हैसियत से तुमने जो किया है। ताज का कहना है कि आप एक बड़े भाई की तरह हैं। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि एक बड़ा भाई है। जब हम वहां पे गए ना जावेद भाई, तो वो छोटा भाई मेरे को देखा, मुझे सलाम तक नहीं किया, मुझे गले तक नहीं लगाया, मुझसे बात तक नहीं किया, मुझे धक्का दे करके आगे बढ़ गया और दूसरा मॉब को मेरे पीछे लगा के खदेड़ता हुआ कि आप तो थी वो ये थी, कैसा जुमला इस्तेमाल कर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बेगर जाने बेगर समझे काउंसिलर, गुंडागर्दी, क्या पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं? इनके साथ इतना नेता है। अरे हमारे साथ नेता होता तो मेरा ये फ्रैक्चर हो जाता। आप अगर मामला को सॉर्ट आउट करने गए थे तो 30 से 40 लोग को क्यों लेकर गए थे? 10 से 12-15 लोग, वो भी हमारे गाड़ी। अच्छा, मैं खुद भी मामला को फिर आप फिर समझ नहीं रहे, मैं समझने की कोशिश कीजिए। मैं छोटा भाई हूं, अगर किसी का भाई मस्जिद से फोन करके, कोलू टोला मस्जिद में जाइए, नमाजियों से पूछिए, वहां के मुआजिन से पूछिए, वहां के दुकानदारों से पूछिए। पन्नू फकीरा का नाम कौन नहीं जानते? वन ऑफ द बेस्ट कुक ऑफ बिरयानी। पन्नू फकीरा का वहां हलीम का दुकान है, पन्नू फकीरा से पूछिए, उनके बेटे से पूछिए, अच्छे भाई से पूछिए, चिकना आसिफ से पूछिए, वहां के हॉकर्स के पूछिए, दुकानदारों से पूछिए कि अगर वो ना होते तो राज की लाश लाने जानी पड़ती, ताबूत लेके जाते तब अच्छा लगता। अगर वो लोग मस्जिद में नहीं, आखिर राज को मस्जिद में ढुकाना क्यों पड़ा? आखिर कैसा सिचुएशन था जो मस्जिद में नहीं ढुकता तो उसकी जान नहीं बचती? आखिर राज पे हमला क्यों हुआ? इस पर आप लोग नहीं छोड़ रहे। ताज को इस बात की फिक्र नहीं है? क्या ताज इस बात का इंक्वायरी नहीं करेंगे? पुलिस प्रशासन का भूमिका के ऊपर क्या? देखिए, पुलिस प्रशासन का क्या भूमिका है नहीं है ये मैं नहीं जानता हूं। कल लोग अरेस्ट हुए हैं, 6-7 लोग उधर से भी अरेस्ट हुए, इधर से भी अरेस्ट हुए। अगर मुझ पर भी कोई अभियोग है, मैं गुंडा हूं, तो मेरे नाम में भी एफआईआर के मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं। मैं अरेस्ट होने के लिए तैयार हूं, मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं, 22 जनवरी को जो यहां पर बैतुल माल में हमला हुआ था, वो भी अमन अमान के साथ हम लोगों ने, केला बागान के लोगों ने अमन अमान के साथ, पूरा कलकत्ता के गुंडा को, वो ताज कहता ना एंटी सोशल, उसको नजर आया जब मिराज यहां आया था 22 तारीख को, पूरा एंटी सोशल को लेकर के। उस टाइम में ताज नहीं देखे थे सोशल मीडिया में? आप लोग तो देखे थे, सीएन न्यूज भी। ये क्या झूठा इल्जाम है कि आप जो है एक बुजुर्ग को भी मारे हैं? क्या ये झूठा इल्जाम है? देखिए भाई, वीडियो जो वायरल हो रहा है, देखिए, तो पब्लिक वहां का कह रहा है कि ताज साहब के वर्कर वहां के कह रहे हैं, या फिर मिराज का कोई वर्कर वहां से कह रहे हैं। ये आपके पास कोई थर्मामीटर है कि वो पब्लिक है ना वर्कर है? आप पता कर सकते हैं मेरे साथ। आप अचानक से बेधड़क किंग करना, और जाहिर सी बात है आप पब्लिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आखिर मामला क्या बैतुल माल को लेकर के इन लोगों की साजिश हो रही है? आप एक बात पहले समझिए, आप थोड़ा लेट से आए हैं। मेरा छोटा भाई रात 3:15 बजे मुझे फोन करता है कोलू टोला मरकज मस्जिद से रोते हुए कि मेरी जिंदगी बचा लीजिए, 20-25 लोग मुझे मार रहे हैं।
कहाँ से फोन करता है? मस्जिद से। आप जाके मस्जिद के मुअज्जिन से पूछिए, आप नमाजियों से पूछिए, आप वहां के दुकानदारों से पूछिए। आखिर ऐसा 20-25 लोग रात को मार रहे थे, उसको मस्जिद में पनाह लेना पड़ा क्यों? और मेरा भाई अगर फोन करके बोलेगा मेरी जिंदगी खतरे में है, मैं जाऊंगा क्यों? और मैं अगर गया, मेरे पास कोई इस्लाह थी, मेरे पास कोई विपंस था, मैंने बुजुर्गों को मारा, ये बंदगी कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह देख रहा है ना। क्या टीवी में आपने देखा नहीं किसको दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, किसके ऊपर टीवी फेंक रहा है? कोई बुजुर्ग है जो एक भी फुटेज दिखा सकते हैं आप? या बुजुर्ग को लाके खड़ा कर दीजिए कि जसीमुद्दीन ने किसी बुजुर्ग वहाँ को। के पब्लिक का कहना है कि आप लोगों ने पहले चार्ज किया, उसके बाद उन लोगों ने चार्ज किया। भाई वहां के पब्लिक का नहीं, उनके वर्करों का कहना है। ताज साहब तो जीते हैं ना, काफी तादाद में उनके वर्कर है, नहीं तो परवेज इकबाल की अहलिया सागुप्ता कैसे हार जाती? भाई वो मिছিল करते हैं तो 500 लोगों का मजमा होता है ना, तो 500 लोग पब्लिक है कि वर्कर है? तो पब्लिक और वर्कर में जरा फर्क पैदा कीजिए जावेद साहब। ये उनके वर्कर की बोली बोल रहे हैं, वो पब्लिक की बोली नहीं है। पब्लिक से तो पूछ लीजिए।